Good morning, students. So it's time for our informatics practices class. So, what we discussed in our last class, we were on system software, or we are on to programming softwares, in which there are different categories of softwares that will be coming. So the first part was already seen by us. This was covering the language processors and programming languages. Under this, three of the language processors we have already gone through. The first one is compilers, second one was interpreters, and the third one was assemblers. All right. So next thing after this, we are going to move to our second type of softwares, that is application softwares. Now application softwares, what are these? Let us discuss that. So application softwares means we already discussed about this. Means the softwares that perform some special task are called application softwares. Application softwares also have some various categories under itself. So let us see what categories are there. The first one is general or generic purpose application softwares. What these softwares are? These softwares are, we can say, they are ready to use softwares which will be used for our daily use purposes. Like some examples are already given to us over here: word processors, spreadsheet, presentation, dbms, etc. And everything which is given over here, we have already studied all these things in detail and at an advanced level in our class 9th and class 10th information technology subject. Again, this was the first category. Which is the second category? Second category is specific purpose application software. So what are these specific purpose application softwares? So these are the softwares which are designed for specific task, जो कि एक specific task perform करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर्स विच आर गिवन टू अस आर पेरोल, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स. इन सारे सॉफ्टवेयर्स का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस है, कुछ स्पेसिफिक टास्क है जो ये परफॉर्म करते हैं. ये उन्हीं स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं. तो इन सॉफ्टवेयर्स को स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है. सो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, इनमें भी अपन ने दो कैटेगरीज देख ली, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर इसको और डिटेल में यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है. तो पहला जो था वो था वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस. जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें पहला था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स. यहाँ पर इन्होंने वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन दी हुई है. ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए बनाए गए हैं. इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं यूज़र? तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में यूज़र टाइप कर सकता है, डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकता है, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ मैनिपुलेशंस करना है वो कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर सकता है, जो भी टेक्स्ट मटेरियल है उसको. With word processors, we can create well-formatted documents that may contain text and even graphics. So एक और नई चीज़ इन्होंने बताई, जो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें इतनी भी कंपैटिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर ग्राफिक्स को होल्ड कर सकें. मतलब टेक्स्ट along with graphics can also be stored in a document. We can create letters, statements, leaflets with word processing packages. This is already known to us. There is nothing new which they have explained us. So now let us move to the next. The next one is electronic spreadsheet. So spreadsheet is already known to us what spreadsheet is. So spreadsheets are generally some softwares that can be used for making calculations. All right, this is already known to us. The software that generally comes in this category is MS Excel, है ना. ये अपन जानते हैं. एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो जनरली इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट पैकेजेस की कैटेगरी में आता है. तो यहाँ पर इन्होंने वही डेफिनेशन बताई हुई है. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा इन टेब्यूलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पर स्प्रेडशीट्स का यूज़ किया जाता है. स्प्रेडशीट में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स का ग्रिड होता है. ऑल राइट. ग्रिड मतलब क्या? ग्रिड मतलब वो आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से का जो फॉर्मेशन होता है, इसको ग्रिड बोला जाता है ना. तो यहाँ पर एम एस एक्सेल के अंदर ग्रिड्स होते हैं. और ग्रिड्स क्या होता है इसमें? यहाँ पर अलग अलग, जैसे ये मैंने ग्रिड्स बनाए, ये जैसे कि मैंने ये ग्रिड बनाया है,
सो यहाँ पर जो ये एक मिनट, यहाँ पर जो ये रोज़ और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होगा तो वो ये पर्टिकुलर सेल होगा, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है जो यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन से मिलकर बनाया है, ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है, इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेल। मैंने ऑलरेडी टर्म बोल दी थी। ये जो इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का, उसको बोला जाता है सेल। तो ये टर्म आपको पता है ऑलरेडी, नहीं पता है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि स्प्रेडशीट्स टेबुलर फॉर्म में होती है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो जिस एरिया पे अपन पहुंचते हैं तो वो जो एरिया होता है उसको सेल्स बोला जाता है। इन अ स्प्रेडशीट सेल, text, numbers, or formulas can be entered. Any formula entered is automatically evaluated and displayed by the program. ये कैपेबिलिटी है, कैलकुलेशन कर सकता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इवेलुएट कर लेता है वो किसी भी चीज़ के आउटपुट को। ये अपन ने देखा है और काफ़ी डिटेल में देखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पैकेजेस। ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया पैकेजेस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इमेजेस जो होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए या इमेजेस में चेंजेस करने के लिए जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी इमेज को आप क्रिएट कर सकते हो या उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उनको ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया पैकेजेस कहा जाएगा। ये उस पैकेज के अंदर का कोई एक सॉफ्टवेयर होगा। ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटेड यूजिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। अडोबी फोटोशॉप, पेंट शॉप प्रो, यूलीड, फोटो इम्पैक्ट एक्सेट्रा। दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल पॉपुलर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द विंडोज़ एनवायरनमेंट। विंडोज़ एनवायरनमेंट के लिए है ये, क्योंकि ये इंडिया में मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एनवायरनमेंट है विंडोज़। और भी अदर हैं जैसे कि लिनक्स है, उबुंटू जो उसका एग्जांपल है, यूनिक्स है, मैकिनटॉश है, और भी बहुत सारे एंड्रॉयड है, और ये एनवायरनमेंट्स हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, वो विंडोज़ एनवायरनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बताया हुआ है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इवन वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट DBMS इज। ये लास्ट ईयर 10th क्लास में लेवल 2 जो अपना IT का बुक था उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी अपन ने पढ़ा है। ये क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो अपना डेटा स्टोर करती हैं हर एक यूज़र का। तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। ये एक ऐसी रेपोजिटरी होती है जहाँ पर पूरा का पूरा डेटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट किया जाता है। अब ये कलेक्टेड डेटा को कैसे मैनेज करना है, तो उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको DBMS कहा जाता है या डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें अगर तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी डेटाबेस माइट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, सेल्स एंड इन्वेंट्री। तो ये अगर किसी कंपनी के पास अगर उसके एम्प्लॉयज़ का, उसके कस्टमर्स का, वो क्या क्या सप्लाई कर रही है, कितना सेल कर रही है, क्या क्या इन्वेंट्री उसके पास है, क्या क्या आइटम्स है उसके पास, इन सब का एक अगर रिकॉर्ड रखती है, इन सब के डेटा का एक कलेक्शन अगर रखती है, तो वो सिंपली क्या कहलाएगा, तो वो एक डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। द DBMS स्टोर्स डेटा इन अ वे दैट अलाउज इट टू एक्सेस दोज डेटा एट एनी टाइम। अब यहाँ पर DBMS का काम क्या होता है, जो भी आपको स्पेसिफिक डेटा एक्सेस करना है, उस स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए DBMS आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। वो जो भी आप डिज़ायर्ड डेटा चाहते हो, वो डिज़ायर्ड डेटा को ये वहाँ से एक्सेस कर कर आप तक आउटपुट में दे सकता है। ये DBMS सिस्टम की खासियत होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और 5th पैकेज दिया हुआ है जो कि है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस क्या होते हैं, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस क्या होता है, यहाँ पर कुछ ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं इस पैकेज के अंदर, जहाँ पर आप इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर कर आपके कंप्यूटर पे ही मैगजीन्स जैसे जो डेवलप होती है ना, तो मैगजीन्स डेवलप करना, टेक्स्ट बुक्स डेवलप करना, तो ये सारी चीज़ें जब बनाई जाती हैं तो ये सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर पे, फोटोशॉप पे या कुछ पे भी नहीं बन जाती। इनके कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको DTP सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इन DTPs का यूज़ करके जनरली PC के ऊपर आप मैगजीन्स और इन सब चीज़ों को पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने डेफिनेशन में समझाया हुआ है, एक बार रीड करते हैं।
DTP packages can be used for creating professional quality documents and publications. DTP software integrates the processes of design, typesetting, and paste up into one task down. Through DTP, we can create an entire publication such as textbook on a PC. ठीक है, जो अपन बात कर रहे थे पूरी पूरी टेक्स्ट बुक भी पब्लिश की जा सकती है पीसी पर किसका यूज़ करके, तो डीटीपी का यूज़ करके, डीटीपी पैकेजेस, डीटीपी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके. एग्जांपल्स ऑफ डीटीपी पैकेजेस आर एल्डस पेज मेकर, कोरेल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक्सेट्रा. ये कुछ इन्होंने मोस्ट कॉमन डीटीपी पैकेजेस का बताया है. यहाँ पर कुछ इंडियन मेकर्स भी हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं जो जनरली डीटीपी बनाती हैं, डीटीपी पैकेजेस बनाती हैं. तो इन्होंने नाम दिए हुए हैं जैसे कि प्रकाशक, ठीक है, एक है लिपि, एक है आईएसएम, एक है पत्रिका. तो ये जितने नाम हैं ये सारे के सारे क्या है, ये डीटीपी पैकेजेस हैं जो इंडिया के हैं. और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर ये जो मैं जिनको मार्क कर रहा हूँ ये अराउंड द वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर डीटीपी पैकेजेस हैं जो आपने यहाँ पर स्क्रीन पर देखे. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अब कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं. ये अभी अपन ने जेनेरिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स की बात करी, जनरल पर्पस जो डेली यूज़ में यूज़ होने वाले पर्पसेस के लिए बने हुए थे. अब यहाँ पर देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनका कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना मेजर उनका एक एम होता है, तो जो कि बनाए गए होते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो एक होता है पेरोल सिस्टम. जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करती होगी. तो सैलरीज़ का ट्रैक रखने के लिए, सैलरी के पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं उनको पेरोल सिस्टम्स कहा जाता है. मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एयरलाइन, रेलवे, बस रिजर्वेशन सिस्टम, स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे के सारे भी कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, ये भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं. ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है. थर्ड क्लास में अपन, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन ये थर्ड पॉइंट को देखेंगे जो कि है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यहाँ तक का ये जो पीडीएफ है ये आप इस पर्टिकुलर वीडियो जिसको आप अभी देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक लिंक मिलेगा. अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, आपको रीड करना है, तो आप लोग सिंपली उस लिंक पर क्लिक कर कर इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. इफ स्टिल इतना समझने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, सो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और पर्सनली so that things become clear to you. So thank you students, we will see you in the next class. All right.